सर थोड़ा सामने देखिए सर लोग कैसे बोल अरे दारा मोबाइल सर फिर तो मोबाइल सर थोड़ा सामने देखिए बोया लोग सर थोड़ा सामने देखिए না না একটু একটু আমরা স্টিল ছবিটা নিয়ে নিই স্যার থোড়া দিই চলো Dear media friends, today in this meeting we are having the joining program, and may I request our honorable chairman before joining to speak a few words. I think मुझे ज़्यादा बात नहीं करना है आज. I think आप मीडिया कैन आस्क मी क्वेश्चंस लेटर. पहले आप हमारे जो सीनियर कम्युनिस्ट पार्टी से मेंबर एंड फॉर्मर TSU लीडर एज वेल एज स्टेट सेक्रेटरी से आप उनका व्यू सुन लीजिए, ट्राइबल यूथ फेडरेशन से, क्योंकि मुझे अभी कुछ नहीं कहना है. पहले उनको अपना दिल का बात बोलने दीजिए. उसके बाद इफ़ द मीडिया वांट्स टू आस्क मी अ फ्यू क्वेश्चंस कोई भी इशू में, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ. लेकिन आज स्पॉटलाइट मेरे ऊपर नहीं, इनके ऊपर होना चाहिए और इनके साथ जो लोग आए हैं और वो क्यों तिपरा मौथा ज्वाइन कर रहे हैं, थानसा के लिए क्यों आ रहे हैं, ये उनका भी आप सुन लीजिए. उसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी. নমস্কার সবাইকে, যতক্ষণ খুলুমবাইকা আমি চাই, যেহেতু আমার মাতৃভাষা হচ্ছে ককবরক. ককবরক আমাদের রাজ্যের প্রায় সমগ্র ট্রাইবেলের মধ্যে অনেকেই ককবরক ভাষাটা জানে. আমি প্রথমে ককবরক বলবো, পরবর্তী সময় আমি বাংলাতে বলবো. কথা হচ্ছে, আমি আজকে দীর্ঘদিন পর আমি আমার নিজস্ব চিন্তা ভাবনায় ছিলাম আমি মহারাজের আহ্বানে আসব এবং আমাদের যে এই যে ত্রিপুরা রাজ্যের যে নতুন যে চিন্তা ভাবনা, এই চিন্তা ভাবনার সাথে আমিও নিজেকে সামিল করুন. মহারাজ দীর্ঘদিন ধরে আমাদেরকে আহ্বান জানিয়েছিল, সমগ্র রাজ্যবাসীকে আহ্বান জানিয়েছিল, কিন্তু আমি হয়তোবা নিজেকে মনে করি আমি হয়তোবা দেরি করে ফেলেছি. আমরা দেখেছি এই মুহূর্তে আমাদের রাজ্যের মধ্যে যেটা একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই. মানুষের কথা বলা, উঁচু করে মাথা দাঁড়িয়ে বাজার হাতে চলাফেরা করার সেরকম একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই. সেই জায়গাতে সেরকম একটা পরিস্থিতিতে আমাদেরকে দেখিয়েছে আমাদের মহারাজা কী করে লড়াই করতে হয়, কী করে যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে আমাদের রাজ্যের যে একটা পথের দিশারি হিসেবে দেখাতে হয়, এটা মহারাজ আমাকে দেখিয়েছেন, আমাদের দেখিয়েছেন. শুধু আমাকে না, আমি তাদের এই যে ওনার যিনি যেরকমভাবে লড়াই, এই লড়াইয়ের প্রতি আমি নিজে অভিভূত. সেই জন্যই আমি দীর্ঘ বছর আমি হয়তোবা অন্য একটা চিন্তাধারায় আমি আমার জীবন, আমার ছাত্র জীবন থেকে শুরু করে আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবন সব কিছু আমি একটা অন্যরকম ধারার মধ্যে আমি ছিলাম. আজকে আমি সেরকমভাবে আজকে মহারাজার সাথে সামিল হতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি. মহারাজাও আমাকে সেরকমভাবে স্থান দিয়েছেন. আমি চাই এই রাজ্যের সমগ্র অংশের, শুধু উপজাতি অংশের মানুষ না, সমস্ত অংশের মানুষ আজকে যে মহারাজার যে চিন্তাধারা, উনি যে কথা বলছেন, এই রাজ্যের পিছিয়ে পড়া, শুধু পিছিয়ে পড়া না, আমাদের উপজাতি অংশের মানুষের অধিকার যেরকমভাবে আমরা দীর্ঘ বছর ধরে আমরা সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত, এই অধিকারকে আদায় করতে গেলে এই মহারাজের পথে আমরা অনুসরণ করতে হইব.
সেই জন্য আমি ত্রিপুরার সমগ্র শুধু উপজাতি অংশের মানুষ না, এবং আমার মতো যারা আজকে দীর্ঘ বছর বামপন্থী আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন, আপনারা চিনেন হয়তো আমাকে, আমি টিওয়াইবের জেনারেল সেক্রেটারি ছিলাম এবং ছাত্র সংগঠনের স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশনের SFI অল ইন্ডিয়া সিসির সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বার ছিলাম, ডিওয়াইএফের অল ইন্ডিয়া সিসির সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বার ছিলাম একটা সময়। দীর্ঘ বছর আমার 30 থেকে 35 বছর ওইখানেই আমার ছাত্র জীবনটা কেটেছে। তাই এইখানে আমি চাই আমাদের যে, এটা সবাই জানে যে দীর্ঘ বছর ধরে আমাদের যে ইতিহাসের যে দিকে যদি আমরা দেখতাম চাই, যে আমাদের ত্রিপুরা ছিল একটা সময় রাজন্য শাসিত ত্রিপুরা। প্রায় সহস্র বছরের অধিক আমাদের এই রাজ্য আমাদের মহারাজাদের শাসনে ছিল। এই ত্রিপুরা অটোমেটিক্যালি দীর্ঘ বছর আমাদের ট্রাইবালরাই সেরকমভাবে পপুলেশনের দিক থেকেও মেজরিটি ছিল। কিন্তু আপনারা জানেন দেশভাগের পর আমাদের রাজ্যের মধ্যে অন্যায়ভাবে আমাদের এই যে সত্য একটা ত্রিপুরার মধ্যে যারা দেশভাগের শিকার হয়ে আমাদের এই রাজ্যের মধ্যে যেরকমভাবে আশ্রয় নিয়েছেন, তাদের প্রতি আমি অন্যায় কিছু ঘৃণা বোধ করি না, তাদেরকে ধন্যবাদই জানাই। কিন্তু আমাদের ভারত সরকারের দায়িত্ব ছিল সেই সময় শুধু আমাদের ত্রিপুরা না, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গাতে এই যে যারা দেশভাগের চক্রান্ত হয়ে আমাদের যে বিতাড়িত হয়ে আমাদের যে পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশ থেকে যারা আসতে হয়েছে, তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু শুধুমাত্র আমাদের এই ত্রিপুরার মধ্যে যেরকম যেই পরিমাণে লোকজন দিয়ে মানে আশ্রয় দিয়ে আমাদের যে ট্রাইবেলদের যে জনসংখ্যার যে ভারসাম্যটা, মানে রাজ্যের যে জনসংখ্যার যে ভারসাম্যটা হারিয়ে ফেলা হয়েছে, এটা মারাত্মক অন্যায়। এখন যেখানে আমাদের হাতে কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাওয়ার বলতে নাই বললেই চলে, এখানে আমাদের অন্যের উপর ভিক্ষা করে চলতে হয়, এরকম আমরা ত্রিপুরা চাই না। এবং দীর্ঘ বছরে আমরা সেরকমভাবেই আমাদের যেহেতু মহারাজাধীন শাসনে আমরা ছিলাম, আমি আশা রাখবো আমাদের এই রাজ্যের সমগ্র অংশের উপজাতি অংশের মানুষ শুধু না, আমাদের শিক্ষিত অংশের মানুষরা এগিয়ে আসা দরকার। মহারাজার স্লোগানের সাথে পায়ে পা মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়া দরকার। আমি কগ্রকে কয়েকটা কথা বলি এবং আং যতনন খুলুমকার তাকক তাই বুকুকচং তিনি আং দীর্ঘ বছর ট্রাইবেল এড ফেডারেশন, ট্রাইবেল স্টুডেন্ট ইউনিয়নস এবং CPIM-ni খাই দङ। आं তিনি অনেক দিন আগে আं ফাইনানি কক দংমানি आं फाइनामो सुंखानो কিন্তু আনো জরা সময় রিলিয়ানো বাগै आं তিনি জয়েন খাইকা आं आशा खायनाय जेरकमভাবে মহারাজ চিনি ত্রিপুরার জন্য আগাবরিতলাंनायनि बागै ग्रेटर त्रिपुरा लांनि बागैनि कक सामानि आबनो जों लड़ाई खायनायनि बागै चिनि त्रिपुरा सरक ते मथा संगै जों थानसांगैनि याप्रि बाक्सां मांगनाय अ याप्रि बाक्सानि आन्दोलन जत्तनो सामिल नायनि बागै आनि जारा ताव टिवाइएफ फ्लाइ दंनाय जारा TSU फ्लाइ दंनाय अमहाय ताखक ताइ बुकुक संनां जत्तनो कबगो नरगो आं तिनि जेरकम सिद्धांत नाखा आगामी दिनाव फाइनाय सालो नरगो अमहाय लामा नां रमथों आं आशा खायनाय नरग जत्तनो फाइनाय तिनि आं फाइका आमसिया तेव फाइनायखौ आलोचना चलि दङ आनो लगि तेबो दङ। आं आशा खायनाय जत्तनो ও আন্দোলন সামিল নানি বাগै আমি শেষ মাসে একটা কথাই বলবো। আপনারা সবাই জানেন এই রাজ্যের যুবনের অধিকাংশ অংশে আমাদের মহারাজাই হচ্ছে মূল এখন শক্তি। যৌবন তুমি আগুন হও, লাল পলাশের ফাগুন হও, কারণ নংখা সিকলারক नों हर मिनि माबा जानाय बसंतकाल जेरकमभाবে खुमकियावै फैमा हाय अमायकेन मामा चांनाय जराव अ सिकलारक जुदि मथा सांगै तिनि हरंगि बाचा खांके चिनि मानथाय चिनि संविधानिक अधिकार जों आदाय खायनायनि खेत्रआव केब जोंनो रोको गिनार गमाया ओ आन्दोलन तेबो क्राक खायख्लांनायनि बागै आं तिनि आरो सामिलका जतन खुलुमबाय। रंजन देव একটা প্রশ্ন, দীর্ঘদিন আপনি বামপন্থী আন্দোলনের সাথে ছিলেন, গণমুক্তি পরিষদ দশরথদেব আমি অটোমেটিকলি এই বর্তমানেও আজকে গতকাল গত দিব আমি গণমুক্তি পরিষদের জম্পুই জেলা একটা সাব ডিভিশনাল সেক্রেটারি। ঠিক আছে, এই গণমুক্তি পরিষদ একসময় দাবি করতো যে জনজাতিদের উন্নয়নে তারা কাজ করেছে, শিক্ষার আন্দোলনে কাজ করেছে। আপনি এত বছর ধরে কাজ করলেন,
হঠাৎ করে আপনি বামপন্থী আন্দোলন ছেড়ে মহারাজার সঙ্গে কেন? না, এটা শুধু গণমুক্তি পরিষদ আমরা বলি না, রাজ্যের যে শিক্ষা আন্দোলনের যে ইতিহাস যদি আমরা উত্থাপিত করি, এই যে বীর বিক্রম মহারাজা বিক্রম কলেজটা, এটা মহারাজাই তৈরি করে গেছিলেন, সেই কলেজের ছাত্র আমি। তবে জনশিক্ষা সমিতির আন্দোলন আমি অস্বীকার করি না। জনশিক্ষা সমিতি সমগ্র রাজ্যের মধ্যে এটা একটা শিক্ষার যে আলোড়ন তৈরি করবার ক্ষেত্রে তারা একটা দুর্বার গতি নিয়ে কাজ করছিল, এটা আমি অস্বীকার করি না। এই কথা আমি বরাবরই বলবো। আমি আজকে মহারাজার সাথে থাকলে পরেও জনশিক্ষা সমিতির আন্দোলনকে আমি ক্ষুণ্ণ করব না। কারণ জনশিক্ষা সমিতির দ্বারা যেরকমভাবে 300-এর অধিক স্কুল তারা নিজস্বভাবে স্কুল তৈরি করে যে আন্দোলনটা চালিয়েছিল, তার জন্য আমরা গণমুক্তি পরিষদ তৎকালীন সময় বলতাম মানুষের কাছে, আজকেও বলবো। মহারাজের যে আজকে যে তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়, উমাকান্ত যেটা শিক্ষা উমাকান্ত যেটা একাডেমি, এটা তো মহারাজের আমলে তৈরি করা। আমরা এটাই বলতে চাই, শিক্ষার আন্দোলন সবাই এই রাজ্যের জড়িত, শুধু গণমুক্তি পরিষদ না। আগামী দিনে মহারাজ যেরকমভাবে আজকে শিক্ষার জন্য চিন্তা ভাবনা করছে, এই আন্দোলনে সামিল হতে চায়। अगर किसी को कुछ और क्वेश्चन पूछना है। আজকেও আছে অনেকজন। আমাদের গোলাগাতি বিধানসভা কেন্দ্রে জয়রামপাড়া ভিলেজ কমিটির আমাদের এক চেয়ারম্যান, উনি হচ্ছে কুলুমদার বর্মা। আজকে অনেকজনই আসতেছিল, কিন্তু আমাদের যে টাইমটা একটু সমস্যা হতে, আর ওই এলাকা থেকে এখানে আমরা মহারাজের সাথে কথা আছে, জম্পু জেলার একটা মাঝ র্যালি হবে, ওই এলাকাতে অনেকজনই জয়েন। आज जो मीटिंग है जिसको आपको इंटीमेट करने के लिए ऑफिशियल ज्वाइनिंग जम्पुई जिला टाकर जिला कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर होगा, गोलाघाटी के अंदर होगा। एंड इससे पहले भी आज सवेरे आईपीएफटी के 2 AGS हैज़ ज्वाइन तिपरा मौथा। आने वाले दिन में मोर एंड मोर पीपल आर ज्वाइनिंग तिपरा मौथा। कल ओमपी के रैली में ऑलमोस्ट 586 लोग बीजेपी से तिपरा मौथा आईपीएफटी तिपरा मौथा ज्वाइन किए। कोरबुक में ऑलमोस्ट 935 लोग ने तिपरा मौथा ज्वाइन किए। तो पिछले एक दिन में ही 1500 लोगों ने तिपरा मौथा ज्वाइन किया है। लेकिन हमारा सिस्टम फ्लैग हाथ में देकर तिपरा मौथा को ज्वाइन कराने का सिस्टम नहीं है। हम लोग रीसा दे के, हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में सम्मान दे के सबको लाना चाहते हैं। देयर वाज अ क्वेश्चन, किसी ने पूछा था कि मैंने इनको क्लियरली कहा है, आप गणमुक्ति परिषद छोड़कर तिपरा मौथा में आ रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप गणमुक्ति परिषद को गाली दो या ख़राब बोलो। ये मेरा कल्चर भी नहीं है। आपने जो पार्टी को छोड़ा है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप उनके खिलाफ 10-12 चीज़ गलत बात बोलो। आप तिपरा मौथा में आए हो ग्रेटर तिपरा लैंड के मूवमेंट के लिए। आज के दिन ये ग्रेटर तिपरा लैंड मूवमेंट के लिए कोई गणमुक्ति परिषद से हो, जनजाति मोर्चा से हो, कांग्रेस के ST सेल से हो, कोई भी पार्टी से हो, दे आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड ज्वाइन तिपरा मौथा। तिपरा मौथा इज़ अ मूवमेंट, इट्स अ मूवमेंट फॉर ग्रेटर तिपरा लैंड, इट्स अ मूवमेंट फॉर ग्रेटर कॉन्स्टिट्यूशनल पास, और सब वेलकम है। एनी जो भी हमारा डिमांड को समर्थन करता है या सिंपैथेटिक है, तिपरासा हो, बंगाली हो, मणिपुरी हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, जो भी हमारा डिमांड को एक ऐसे नज़रिए से देखता है जो हमें समर्थन करता है, दे आर मोस्ट वेलकम। क्योंकि हम कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं फाइट कर रहे हैं, कोई भी रिलीजन के खिलाफ फाइट नहीं कर रहे हैं, और हमारा उद्देश्य भी नहीं है कि हम किसी के खिलाफ अपना पॉलिटिकल करियर आगे ले जाए। वी वांट पीस, वी वांट ट्रैंक्विलिटी एंड वी डोंट वांट वायलेंस। आज इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड, पीपल कैन डिसएग्री विद अस, आपका अधिकार है हमसे डिसएग्री करने के लिए। लेकिन बहुत लोगों ने मुझे जिन्ना बोल दिया, बहुत लोगों ने हमें पाकिस्तानी बोल दिया। I think that is very unfortunate. This is not the culture of Tripura, and this should not be the culture of politics also. স্যার, কিছুক্ষণ আগে দেখা গিয়েছে মান্দা এলাকার মধ্যে বিজেপি পার্টির আগুন দেওয়া হয়েছে, কে দিয়েছে একটু বলতে পারেন না? পুলিশ গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে, সেই ব্যাপারটা নিয়ে কি বলবেন? Let the allegation came against your party from certain party that your party was suspect higher on this office. Then they should arrest me. Point is, allegations have gone from CPM also that BJP people have attacked.
Allegations have gone from Tipra Motha also that BJP people have attacked them. जुलाई बारी में क्या हुआ? तो हमने भी एलिगेशन दिया था कि पिनाकनाथ को अरेस्ट होना चाहिए विश्वजीत देबबर्मा के मर्डर के बाद, जो मोबाइल फ़ोन कैमरा में आया था। कोई अरेस्ट हुआ है? पॉइंट है कि ये सब चीज़ फ्री एंड फेयर होना चाहिए, एंड द गवर्नमेंट शुड टेक अ फ्री एंड फेयर कॉल ऑन दीज थिंग्स। सर, पाताल कन्या जमातिया ज्वाइन किया है, उसके पहले दिन भी अटैक हुआ था, तो वो लोग एलिगेशन लगा रहे थे कि तिप्रामोथा से ही हो रहा है, अभी भी यही एलिगेशन है। और मेरे ऊपर अटैक हुआ था सबके सामने 16 तारीख को दिसंबर को। कोई अरेस्ट हुआ है? मेरे ऊपर एसडीएम के ऊपर अटैक हुआ था मोहनपुर में, एडीसी के, वो फेसबुक लाइव में आप लोगों ने सब देखा। वो तो जेन्युइन अटैक था। कोई अरेस्ट हुआ है? तो ये सब चीज़ पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और जहाँ में किसी ने कानून तोड़ा है पुलिस शुड टेक एक्शन। लेकिन मैं गलत काम को कभी समर्थन नहीं करूँगा, और मैं गलत लैंग्वेज को भी कभी समर्थन नहीं करूँगा। सर, एडीसी इलेक्शन से पहले पाताल कन्या जी को आपके साथ देखा गया था, फिर अचानक उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और उन्होंने ये बोला कि वी डोंट वांट तिप्रालैंड, वी वांट खालसा ओनली, यूनिटी ओनली। और पाताल कन्या जी जब बीजेपी में ज्वाइन किया, उसमें तिप्रामोथा को कितना नुकसान या प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट तो हम तो प्रॉफिट और नुकसान में नहीं जाते। पाताल कन्या का खुद का पार्टी है, था त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट। उन्होंने अपने पार्टी को बीजेपी के संग मर्ज कराया है। उनको ग्रेटर तिप्रालैंड नहीं चाहिए, वो उनका अधिकार है। उनको वो ग्रेटर तिप्रालैंड को विश्वास नहीं करती, वो उनका अधिकार है। अगर वो बीजेपी में जाकर बात करना चाहती, वो उनका अधिकार है। मैं पाताल कन्या ने बीजेपी ज्वाइन क्यों किया है, क्यों नहीं किया है, उसमें मैं कोई अपना व्यू नहीं देना चाहता हूँ। मेरा व्यू देने से कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है, उन्होंने ग्रेटर तिप्रालैंड को बोला है कि पॉसिबल नहीं है, वो उनका व्यू है। उन्होंने 2-3 चीज़ और भी बोला है, वो उनका व्यू है। अब आप ये सवाल उनसे पूछिए। अगर बीजेपी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो दिल्ली में बैठा है, अगर वो बोलता है कि ग्रेटर तिप्रालैंड ये डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड नहीं है, तो फिर हम उसका जवाब ठीक तरीके से देंगे। क्योंकि जो हमारा डिमांड है ग्रेटर तिप्रालैंड का, वो आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है कि सिर्फ तिप्रासा का डिमांड ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और पूरे इंडिया में सबको अधिकार है अलग राज्य मांगने के लिए, तब वो कानून पास कर ले, तब हम नहीं डिमांड करेंगे। लेकिन जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है कि हर नागरिक का, हर ऑर्गेनाइजेशन का अधिकार है टू डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट, आई डोंट थिंक दे कैन कॉल अस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और टेररिस्ट और पीपल who and put allegations on us. Maharaj, you have already cleared that there will be no talk of alliance with the BJP. There will be no talk of alliance with the BJP. पाताल कन्या ने स्टेटमेंट दिया है, बीजेपी ने उसका पॉइंट ऑफ व्यू, अगर पाताल कन्या का पॉइंट ऑफ व्यू फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू है, देन अलायंस पॉसिबल ही नहीं है। अगर बीजेपी बोलता है कि बात करने के लिए वो तैयार है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम रेडी है बात करने के लिए। लेकिन अगर उनके लीडर ने कह दिया है कि ये डिमांड कभी पॉसिबल नहीं होगा, जैसे कि आई थिंक 2019 के लोकसभा इलेक्शन में सुनील देवधर जी ने कहा था कि एनसी बाबू समझ ले कि तिप्रालैंड नहीं होगा, आप विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो जाइए, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद अगर एनसी देबबर्मा विपक्ष में बैठ जाता तो आज आईपीएफटी का पोजीशन और हाई हो जाता। हम लोग इतना, अगर किसी ने हमें कहा कि आपका डिमांड कभी नहीं होगा और वो बीजेपी का ऑफिशियल पोजीशन है, तब हम बीजेपी के संग कैसे अलायंस कर सकते हैं? हम लोग अलायंस नहीं करेंगे। अगर उनको लगता है कि जो स्टेटमेंट दिया गया था वो गलत स्टेटमेंट है, तो उनको क्लैरिफाई करने बोलिए। लेकिन मैंने अभी तक कुछ क्लैरिफिकेशन भी नहीं देखा है। हमारा डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल है। आप कैसे बोल सकते कि हमारा डिमांड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है?
विलेज इलेक्शन विलेज काउंसिल का इलेक्शन आप लोग फाइट कर रहा है और जो एलसी में बिल भी आपने पास किया है और यहाँ में फाइनेंशियल वादत भी खत्म हो चुका है, आप भी इलेक्शन में हो रहा है, इसमें किसका नुकसान और फायदा हो रहा है? और नुकसान तिपरासा का हो रहा है, नुकसान सब तिपरासा का हो रहा है, आम नागरिक का हो रहा है, क्योंकि किसी ने हम लोग को छोटा पार्टी बोला था। हम लोग छोटा पार्टी है, बीजेपी बड़ा पार्टी है। अगर उनको इतना उनको लगता है कि हम लोग छोटा है तो आप विलेज काउंसिल इलेक्शन करा दीजिए। अगले 1 महीने के अंदर हम लोग तैयार है दिखाने के लिए कि हमारे पहाड़ में कौन छोटा है और कौन बड़ा है। लेकिन अभी तक जो गवर्नमेंट कर रहा है विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस, उसका वजह क्या है? आपने अगरतला में इलेक्शन कर दिया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, आपने उत्तर प्रदेश गोवा में कर दिया, आपने पंजाब में कर दिया, मणिपुर में कर दिया, तो हमारे विलेज काउंसिल में इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे? कोई कहता कोरोना है, कोरोना वायरस है इसके लिए। मुझे तो नहीं लगता कि कोरोना वायरस है, मुझे लगता है कि थानसा वायरस है वहाँ में और वो लोग इलेक्शन करने से डर रहे हैं। हाँ, यस, यू कैन एक्सपेक्ट मोर। सी, मैंने इनको नहीं देखा कि ही इज कम्युनिस्ट, ठीक है। मैं आज भी जितेंद्र चौधरी को बहुत इज्जत करता हूँ, मैं आज भी अतुल देव वर्मा को बहुत इज्जत करता हूँ, मैं आज भी जिष्णु कर्ता को बहुत इज्जत करता हूँ। आज भी अगर गण मुक्ति परिषद से बहुत लीडर्स लोग आना चाहते हैं, मैं इज्जत करता हूँ। मेवाड़ को मैं बहुत प्यार करता हूँ। हमारे वृषिकेतु है यहाँ में, बीजेपी IPFT से आए, अपना धनंजय है, अपना सिंधु जमतिया है, गीता देव वर्मा है, बहुत लीडर्स है, सबके संग मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है। बीजेपी में भी प्रमोद रियांग है, बहुत लोग हैं। मैं सिर्फ बुर्बो मोहन है, DC रांगखोल है, मेरे संग कांग्रेस में थे DC रांगखोल, तो मुझे कोई आपत्ति, आई डोंट हैव एनी वरी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट दे शुड कम टुगेदर एंड टेल मी वन थिंग। आई मीन, आप लोग एक बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का किताब उठा लीजिए और आर्टिकल 2 और 3 पढ़ लीजिए, और अगर उसमें लिखा है कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का संविधान, इज एप्लीकेबल एवरीवेयर इन इंडिया बट नॉट इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा, देन आई एम विलिंग टू कीप क्वाइट। लाइट कर, हाँ? आप लोग का बीच में थानसा नहीं है, जर्नलिस्ट कम देख रहा है।